Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well, happy, and healthy. Students, we are studying this chapter matter in our surrounding, where in your previous lecture we have discussed about the properties of different states of matter, like physical states of matter, solid, liquid, and gas. Right? Today, what we are going to study is another important topic related to the chapter, that is interconversion of physical states of matter. So let us start studying about it. Okay, interconversion of states of matter. Okay, so now we all know that this physical state can be converted from one form to another, right? So here this ice can be converted to water, okay, and water can be converted to gas or steam, I would say. Okay, so here ice is in the form of solid, water is in the form of liquid, and steam is in the form of gas, right? So these interconversions you are very familiar with, you have studied in your lower classes also, right? So here this interconversion, okay, these states are getting converted on the basis of what? On the basis of heat or temperature. So एक बात याद रखिए हमेशा कि physical states can be changed, okay, when the temperature is changed. Okay, so जैसे जैसे temperature increase या decrease होगा, this physical changes can appear, this changes in state of matter can appear. So the very important point is that physical states of matter can be changed in two ways. Okay, in two ways. The first one is what? Temperature. By temperature you can say, and second one is what? Pressure. Okay. So these two factors are very important when you are studying about interconversion of any physical state. So these changes can bring about here a quite lot of changes. Okay, so we will be studying in a very detail, in very brief manner, how these temperature and pressure can affect the states of matter. Okay, so we will start by what? By the effect of temperature. First one, what? Effect of temperature. Okay, so in temperature, what we will be studying the first point, when ice is getting converted to water and water is getting converted to what? Steam. Here we all know, whenever we are providing heat, okay, this particular changes is based on what? When the heat is provided, and heat is nothing but it is related to the term temperature. बराबर है, हीट किससे जुड़ा हुआ है? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से. Okay, so the first point where solid is getting converted to liquid, or we could say ice is getting converted to water, या आप क्या कह सकते हैं? Solid is getting converted to liquid. ये एक क्या है? एक चेंज है किसमें? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में. सो इस पर्टिकुलर चेंज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग. ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? मेल्टिंग और फ्यूजन. क्या कहते हैं इसे? मेल्टिंग और फ्यूजन. ओके, सो whenever there is a physical change, okay, whenever there is a physical, in particular solid is getting converted to liquid, so this process is called what? Melting or fusion. So melting or fusion is a process, okay, in which solid gets converted to liquid by increasing temperature. तो melting or fusion क्या है? It is a process in which solid gets converted to liquid by
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ देखिए इस फिजिकल स्टेट में क्या हो रहा है, हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। सो वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग हीट और वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट हैपन्स, दिस पार्टिकल्स विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट, ओके, एंड what will happen, the kinetic energy of the particles will get increased, right. So whenever this kinetic energy is getting increased in solid particles, the particles will start vibrating, okay. So whenever they will start vibrating, this change in the state will occur, okay. तो जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल्स के हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दिस कन्वर्जन स्टार्ट्स, ओके। सो ये कन्वर्जन क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओके। सो हमें हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी इस तरीके का कोई स्टेट चेंज होता है, ओके, सो यहाँ जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड में। अब यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना चाहिए, कितनी हीट हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि एक सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम नाम देते हैं, बहुत ही स्पेशल नाम है उसका, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज होता है, इनटू अ लिक्विड, ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड gets converted to liquid at atmospheric pressure, okay. So melting point is what, it is a temperature at which a solid gets converted to liquid at atmospheric pressure, इसको हम बोलते हैं melting point, okay. So melting point of ice कितना है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी बाहर ही आपने आइस को निकाला, वो देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। इवन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैंडल या कैंडल वैक्स हम बोलते हैं, है ना, कैंडल वैक्स का देखिए तो दैट इज हाउ मच, 63 डिग्री सेल्सियस, ओके, सॉरी, राइट, 63 डिग्री सेल्सियस पर एक कैंडल वैक्स जो है वो मेल्ट होती है। यही अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन देखें, आयरन रॉड पर्टिकुलरली, तो दैट इज 1573 डिग्री सेल्सियस, विच इज क्वाइट हाई, 1573 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्वाइट हाई, ओके। सो देर आर different melting point or I could say different temperature at which these substances starts melting. So now the question arises, and it can be asked also कि why these different substances have different melting point, क्यों हर substance का अपना different melting point है, why that melting point is different for every substance, okay. So give reason, this question can be asked, okay. So the reason behind is that because every substance, the molecules are having I would say that all the particular substances, they have different force of attraction, right. Intermolecular space का difference होता है, most importantly different substances have different force of attraction. So whenever we have a substance whose force of attraction is high, the higher amount of temperature or the higher requirement of heat is needed. So sufficient amount of heat is supplied when there is higher force of attraction, okay. So हमें पता है कि जैसे ही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने के लिए जितना जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी विल क्या होगी, इट विल गेट रिड्यूस होगी ना, क्या होगी वो, उसमें जैसे ही स्कैटरिंग आएगा वैसे ही मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट लूजिंग, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ओके, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैन बी हैपन,
ओके। तो यहाँ ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला आपका टर्म है जहाँ इंटर कन्वर्जन में आप सॉलिड टू लिक्विड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये क्या है, ये आपका मेल्टिंग या फिर उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, next where we are studying the conversion about water to steam. Okay, so this particular is called vaporization. Okay, क्या बोलते हैं हम इसको, वेपोराइजेशन। सो वेपोराइजेशन इज नथिंग बट दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, ओके, ऑन हीटिंग, राइट। सो वेपर होना करना मतलब क्या, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेयर अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग, ओके, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट। बराबर है, आपने लिक्विड को इतना टेम्परेचर, आपने हीट इतनी प्रोवाइड की कि वो क्या हुआ, बॉईल करना स्टार्ट हो गया, और बॉईल होकर किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया या स्टीम में कन्वर्ट हो गया। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ओके, सो ये आप बहुत ही फैमिलियर हैं इस टर्म से, चाहे फिर वो कंडेंसेशन हो, वैसे क्योंकि आपने वाटर साइकिल पढ़े हैं, है ना। सो दिस पर्टिकुलर वेपोराइजेशन, it is a process where liquid is getting converted to gas at what, at a boiling point, है ना। कहाँ पर, जब हम बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करते हैं तब ये वाला स्टेट जो है ना, ये वाला चेंज होता है किसमें, इनटू पर्टिकुलर gaseous state. Okay, so vaporization is what, it is a process in which liquid get converted to gas when reaching at the certain temperature. Okay, when reached at the certain temperature. अब यहाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना है कि एक लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैसियस स्टेट या स्टीम में चेंज हो जाए। सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, इट इज अ टेम्परेचर, it is a temperature at which liquid gets converted to gas, कब at atmospheric pressure, ठीक है, atmospheric pressure। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इसके बिना दिस टू डेफिनेशंस आर मीनिंगलेस। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस और उसकी डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ मैं। ओके, तो जब कभी भी हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसको डिफाइन करना होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टर्म के बिना, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है। ओके, सो दिस atmospheric pressure is important. So boiling point is what, it is a temperature at which liquid gets converted to gas at atmospheric pressure. So what is the boiling point of water? See, boiling point of water is how much? It is 100 degree Celsius. Okay, if you talk about boiling point of alcohol, how much it is? It is around 78 degree Celsius, right? We have boiling point of benzene also, which was how much? It was around 88 degrees Celsius. We have studied about that. Boiling point of acetone is how much? It is around 56 degrees Celsius, right? So in last time in your while teaching you the second chapter, the fractional distillation and distillation processes, while teaching you that we have already studied about it. Okay, so boiling point कितना होता है ये आपको याद करना ही करना है। okay, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, है ना, ये आपको याद रहेंगे तभी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या, हमें मिलता है कन्वर्जन किसका, लिक्विड टू गैसेस का, और फ्यूजन से हमें मिलता है किसमें, सॉलिड टू लिक्विड में। ओके, अब देखिए ये प्रोसेसेस जो हैं, है ना, ये जो फिजिकल स्टेट्स कन्वर्जन है, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स इनका इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है। मीन्स दिस कैन बी चेंज फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड अगेन। सो ये प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम, दीज प्रोसेसेस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी है,
रिवर्सिबल है, यानी आप इसको वापस से गेन कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को गैस में ऑन हीटिंग, सो जो गैस आपका जो स्टीम कलेक्ट हुआ है उसको ऑन कूलिंग यू कैन, आफ्टर कूलिंग यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि दूध अगर आप गर्म करते हैं उसके ऊपर आप कोई प्लेट ढक कर रख दें, है ना, तो जो स्टीम है वो थोड़ी देर बाद ठंडे होने के बाद पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो यू कैन कन्वर्ट अ स्टीम टू लिक्विड स्टेट। अगर आप यही वही लिक्विड को कलेक्ट करें एंड यू कीप इट इनसाइड अ फ्रीजर, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये स्टेट भी हमारे पास क्या है, चेंज होती है। और अगर हम देखें तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है गैस में, ठीक है। अब गैस में कैसे, आपने कैम्फर बॉल्स देखे हैं, कपूर की बत्ती देखी है ना आपने, कपूर जलाते हैं हम, कपूर क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। जब आप उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट, वो लिक्विड स्टेट को क्या करता है, स्किप कर जाता है। तो ये सारे कन्वर्जन जो है वो क्या है, ये पॉसिबल है, ये रिवर्सिबल है। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब यहाँ देखिए, पहली प्रोसेस जिसमें हम ये कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ओके, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। We all know that solid gets converted to liquid, liquid get converted to gas. Here in condensation, this gas is getting converted to liquid. Okay, this gas is converted to liquid. So we can say that condensation is what? It is a process. It is a process in which gas gets converted to liquid on what? On cooling, okay, on cooling, ठीक है। So this is important. Here gas is getting converted to liquid on what? Cooling. This process is what? This is we call as condensation, okay. So अब यहाँ पर हो क्या रहा है इस कन्वर्जन में, यहाँ देखिए, we all know कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये स्टेट्स जो है लिक्विड टू गैस में चेंज किए। अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर doing what? We are doing the temperature down, we are keeping it down, we are doing that heat portion is getting less and less by the passage of time, है ना। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, molecules will start coming closer to each other. When molecules will start coming to each other, what will happen? There will be changes in kinetic energy as well, right? So this kinetic energy is getting reduced. When these molecules are getting converted, when this temperature is down, when heat is being stopped provided, okay. So all is happening what? Here kinetic energy is getting reduced. So whenever this type of conversion is happening, when the kinetic energy is getting down, temperature is getting down, okay, so that means this physical state get converted from gas to liquid, right? So यहाँ पर कौन सा conversion होगा, यहाँ पर gas to liquid का conversion हो रहा है, ओके। सो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इस प्रोसेस में यहाँ देखिए, इसको आप रिवर्स ऑफ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। बॉइलिंग का रिवर्स यानी कि उसे कूल करना, ठीक है। तो प्रोसेस को बहुत आपको डिटेल में पढ़ना होता है और कन्वर्जन्स को आपको समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट वन मोर प्रोसेस दैट इज नोन एज व्हाट, व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सॉलिड, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अब ये भी रिवर्स है किसका
इसका रिवर्स है, इट्स रिवर्स ऑफ बॉइलिंग ऑल्सो। यहाँ देखिए बॉइलिंग को आपने क्या किया है, कूल करके किसमें, फ्रीजिंग में या सॉलिडिफिकेशन में कन्वर्ट किया है। तो सॉलिडिफिकेशन में ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेयर इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which liquid, okay, liquid gets converted, it gets converted to solid। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, यहाँ पर हीट प्रोवाइड हो रही है क्या, नहीं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑन कूलिंग, ओके, ऑन कूलिंग। सो यहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब कभी भी लिक्विड पार्टिकल्स है उसको आप किसी डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कमिंग वेरी क्लोजर टू ईच अदर, helping what they the least kinetic energy will be provided over here, and molecules won't be vibrating, they will be in the closed form, है ना, particles will be very close to each other, okay, resulting into what, resulting in the conversion of liquid state to solid state, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टर्म्स आप देखिए यहाँ पर। अगर हम देखते हैं सॉलिड, ओके, दैट इज what we say ice, है ना, ice is getting converted to liquid, liquid means what, here you have water, okay। इस पर्टिकुलर को हमने क्या बोला था, फ्यूजन। अब फ्यूजन में हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब यही लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, गैस मीन्स व्हाट, योर स्टीम। इसको हमने क्या नाम दिया था, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, यहाँ पर भी हीट इन्वॉल्व थी, ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, दिस इंटरकन्वर्जन, ओके, गैस वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, दिस इज व्हाट वी कॉल कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, यहाँ पर कूल किया था हमने, टेम्परेचर नहीं था। अब दिस लिक्विड गॉट कन्वर्टेड टू सॉलिड, दिस इज वी कॉल फ्रीजिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, solidification, okay। And one more we have where solid get converted to what, where solid is being converted to gas, this is we call sublimation। So sublimation में क्या हो रहा है, solid is getting directly converted to gas, ये इसका इंटरमीडिएट फेज है ना, ये इंटरमीडिएट फेज है जहाँ पर सॉलिड क्या कर रहा है, लिक्विड को स्किप करके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू गैस। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक आपकी कैम्फर बॉल्स, है ना, कैम्फर बॉल्स है जिसको कपूर आप बोलते हैं, नेप्थलीन बॉल्स, ओके, नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, वो मम्मी रखती है ना कपड़ों के साथ ताकि कोई बदबू ना आए, है ना, ताकि जो कपड़े हैं उसमें से लंबे टाइम तक अगर अंदर है तो उसमें से कहीं कोई कीड़े ना लगे, दीमक ना लगे, है ना। तो उस तरीके के लिए हमारे पास नेप्थलीन बॉल है, आप देखिए वो भी रिड्यूस होकर पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, दैट इज वी कॉल्ड एज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, ओके। वहाँ अमोनियम क्लोराइड का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड विच गेट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली गैस, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसमें हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू दिस हीट, यहाँ पर जिसे हम लेटेंट हीट बुलाते हैं। तो लेटेंट हीट का इम्पोर्टेंस और वो क्या है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, right? So we will be studying that in your next lecture. I hope that you have understood the interconversion properly, as it is not that difficult because we are quite familiar with all these terms, whether it's conversion of solid to liquid, that is what here, this is melting, right, and vaporization, condensation, all this। इसमें मैंने आपको बताया लिक्विड का गैस में चेंज होना, यानी यहाँ पर कंडेंसेशन जो है क्या हो रहा है, गैस का लिक्विड में चेंज। जैसे रेन का एग्जांपल, रेन साइकिल में आपने कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको समझने के लिए, ओके। डू नोट डाउन ऑल द कन्वर्जन नेम्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।